Okay, if you look at the question, while arriving, Jayant travels 30 km with a uniform speed of 40 km per hour. Next 30 km with a uniform speed of 20 km per hour, you'll have to calculate the average speed. So if this line represents entire journey, in the question it is given first 30 km. Let this be S1 with a speed of 40 km per hour. Okay, and next 30 km, let this be S2 with a speed of 20 km per hour. Find the average speed. So average speed calculate करने के लिए आपको तो time भी चाहिए, total time. So first case और second case से you just try to find out time. V1 is equals to S1 by T1. इससे आप T1 फाइंड आउट कर लो. करना आपको है. कंप्लीट सॉल्यूशन में आपको मेरा हेल्प नहीं मिलेगा. मैं आपको मेथड समझाऊंगा और आपको खुद को सॉल्व करना है. सो S1 बाय V1. सिमिलरली सेकेंड केस से आप फाइंड आउट कर लो T2. T2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा S2 बाई V2. फिर आपको फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड. Total distance covered S1 plus S2 by T1 plus T2 by T1 plus T2. So you just try to solve this particular question. आज का क्लास में कोई कंपटीशन नहीं है. आपको पहले आंसर करना, ऐसा कोई भी कंपटीशन नहीं है. आप आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व करो. मैं आपको आंसर बताऊंगा. आपको चेक करना है whether your answer is correct or not. Okay, you just try to solve it. Most of the students are getting the same answers. They are getting the same answer. Tanish Todi, like your answer, others are also getting the same answer. So here S1 by V1. S1 by V1 T1 हो जाएगा आपका 3 by 4 hours. T2 हो जाएगा 3 by 2 hours. 3 by 2 hours. Total distance आपका 60. Total distance is what? 60 kilometer. Okay. Total distance is 60 kilometer and time 3 by 4 and 3 by 2. 3 by 2 is 1.5 and 3 by 4 is 0.75. तो ये 60 by 2.25. 2.25. And what answer are you getting for after dividing this? Most of the students are getting 26.66 or 26.68. Someone is writing 26.67 also you can write. Are you getting this answer? 26.67 or 66 kilometer per hour as average speed. If you are getting this answer, then there is no problem. किसी को भी डाउट है तो बताना. किसी को भी डाउट है तो बताना आप. ओके. Okay, yes, Parik. I'm moving to another question. If you don't have any doubt in this particular question, इसमें अगर आपको डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जा सकते हैं. I'm asking again, do you have any doubt? If you have any doubt, just tell me in the chat box.
Okay, I'm moving to another question. Moving to another question. This one. You just read the question. पहले आप आराम से question को पढ़ो, question को समझ लो, and then you try to solve. 2 बार already आ चुका है finals में. Rajiv went from Delhi to Chandigarh on his motorbike. Odometer होता है the device that measures the distance covered. Odometer of bike reads 4200 km at the start of the trip and 4460 and what 4460 km and at the end of the trip. And Rajiv took 4 hours 20 minutes to complete his trip. Simple question है. ओडोमीटर का रीडिंग से आप डिस्टेंस कवर्ड निकाल सकते हो. ओडोमीटर का रीडिंग से आप डिस्टेंस कवर्ड निकाल सकते हो. डिस्टेंस कवर्ड स्टार्टिंग में 4200 बाद में हो गया 4460. सो 4460 किलोमीटर बाद में 4460 किलोमीटर माइनस 4200 किलोमीटर माइनस 4200 किलोमीटर. ओके, सो 4460 किलोमीटर माइनस 4200 किलोमीटर हो जाएगा डिस्टेंस. एंड टाइम टेकन इज 4 hours 20 minutes. तो 4 hours 20 minutes को मिनट को आप आवर में कन्वर्ट करोगे अगर आपको आवर्स में निकालना है तो 4 hours 20 minutes 20 minutes मतलब 20/60 आवर हो जाएगा. सो इसको आप कन्वर्ट कर लो इनटू आवर्स. आवर्स में कन्वर्ट कर लेना. 20 मिनट्स को आप जब आवर में कन्वर्ट करोगे डिवाइडेड बाय 60 होगा. ओके, देन आपको जब मीटर पर सेकंड में आंसर निकालना है, किलोमीटर को मीटर करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है इनटू 1000. और आपको अगर मीटर पर सेकंड में टाइम को सेकंड, आवर में जो टाइम रहेगा उसको आप 3600 से मल्टीप्लाई करने से वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा. या आप एक और काम कर सकते हो. फर्स्ट यू फाइंड आउट आंसर इन किलोमीटर पर आवर and then you convert it into meter per second as the method we discussed in the last class. So you are having 2-3 minutes to think about this particular question. You should get to these answers. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, O से पहले P और P से बाद में Q तक का डिस्कशन है. And you should get these answers. Okay, so I hope you have understood and I am moving to another question. If you have any doubt you can send me in the chat box. तनिष्क तोदी को डाउट है. क्या डाउट है चैट बॉक्स में बताना. पूरा क्वेश्चन में डाउट है या फिर कोई एक पार्ट में. तनिष्क तोदी just inform in the chat box. Second का एवरेज वेलोसिटी 10 and एवरेज स्पीड 20 ना. हाँ, एवरेज स्पीड जो है पहले जो मैं निकाल रहा हूँ वो स्पीड है. पहले जो मैं निकाल रहा हूँ वो स्पीड है, एवरेज स्पीड. और सेकंड वाला एवरेज वेलोसिटी यहाँ मैंने मार्क कर दिया था. आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड. ओके, आई एम मूविंग टू अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आप जब तक न्यूमेरिकल करोगे खुद और आंसर मैच होगा तभी अच्छा लगेगा आपको. ओके, नेक्स्ट वन, दिस वन. इसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे अभी. दिस वन बी वाला पोर्शन. A bus travels 120 km with a speed of 40 km per hour and returns with a speed of 30 km per hour. Calculate the average speed of the entire journey.
तो आपको पाथ का लेंथ बता दिया, पाथ का लेंथ बता दिया, जाने का स्पीड और आने का स्पीड क्या है उसका भी इंफॉर्मेशन आपको दे दिया। जाने के लिए स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और आने का स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड डिस्टेंस इज गिवन, S1 आप लोगे 120 किलोमीटर, S2 भी आपको लेना है 120 किलोमीटर, इसमें हाफ हाफ का बात नहीं है। एंड दिस इज V2 एंड हियर इट इज V1। ओके, ये है V1। सो आपको V1, S1, V2 और S2 का वैल्यू पता चल गया। You can easily find out T1, you can easily find out T2, and after finding out T1 and T2, you can find out average speed, total distance covered by total time taken। और सिंपल है, आपको T1 और T2 फाइंड आउट करना। V1 इज इक्वल्स टू S1 बाई T1 से T1 आ जाएगा, V2 इक्वल्स टू S2 बाई T2 से T2 आ जाएगा। You just try to find out the answer and most of the students have given the answer। तो आंसर मैं बता रहा हूं, पहले आप लोग जितना हो सके मैक्सिमम स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लो। चिराग शर्मा का आंसर करेक्ट लग रहा है हमको, पार्थ का रॉन्ग है। समीर मुंद्रा का भी रॉन्ग है। कैलकुलेशन करके देखो, आंसर देने का कंपटीशन नहीं है आज। आज आपको न्यूमेरिकल करना है, जल्दी आंसर देने का चक्कर में आप रॉन्ग दोगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। S1 प्लस S2, S1 120 और S2 भी 120। Just try, others keep on trying। तो यहाँ हम लोगों को क्या मिल रहा है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या लेंगे हम लोग, 120 प्लस 120 किलोमीटर, और टाइम जो है T1 इक्वल्स टू S1 बाई V1, तो 120 बाई 40 प्लस 120 बाई 30, इसको सॉल्व करना आपको। ओके, द आंसर इज 34.28 और 23 भी आने से करेक्ट है। 34.2 something, 34.2 something। if you get to the answer, no problem। 34.2 किलोमीटर पर आवर। ओके, आज कोई कंपटीशन नहीं है, किसी का नाम लेके उसको इज्जत नहीं दिया जाएगा, इवन इफ यू आर गिविंग आंसर। ओके, आज का क्लास में मैंने बोला है कोई आपको बस आंसर देना है आपको। Have you got this answer, all of you? If you got this answer, no problem, आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया। That means किसी ने आंसर 17 पॉइंट समथिंग दिया था, सो आई थिंक वो लोग डिस्टेंस में कंफ्यूज हो गए। ओके, वो डिस्टेंस में कंफ्यूज हो गए, यहाँ जाने का और आने का दोनों का डिस्टेंस है। Okay, should I move to another question if you understood this one? 17 पॉइंट कुछ आया तो वो रॉन्ग होगा अकॉर्डिंग टू डिस्कशन। देखो आप,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 120 प्लस 120 जाने का और आने का दोनों का रिक्वायरमेंट है। I am moving to another question. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन दिस वन। आप इसको समझ पाने से बहुत अच्छा है। अ पार्टिकल मूव्स ओवर 3/4 ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल, और इस सर्कल को हम लोग 4 क्वार्टर में डिवाइड कर देते हैं। वी आर डिवाइडिंग दिस इनटू 4 क्वार्टर्स। और क्वेश्चन में बोला है पार्टिकल मूव्स 3/4 ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r। ये रेडियस r है, तो ये चारों साइड r ही होगा। एंड बोला कि मूव्स ओवर 3/4 ऑफ द सर्कल, तो समझो यहां से स्टार्ट किए P से, 1 क्वार्टर कवर हो गया, 2nd क्वार्टर कवर हो गया, 3rd क्वार्टर कवर हो गया, एंड इट हैज रीच्ड द पॉइंट Q। और ये पॉइंट जो है सेंटर हम लोग O ले लेते हैं। सेंटर हम लोगों ने क्या लिया? O। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट P से लेके Q तक अगर एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन करें, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। और आपको PQ का वैल्यू निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग जाते हैं तो वहां पे OP का वैल्यू है R, OQ का वैल्यू भी R है, रेडियस, और आपको PQ का वैल्यू पूछा है। और यहां पे अगर आप ठीक से देखो तो ये बन गया है राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। एंड यहां से हम लोग को आंसर मिलने वाला है PQ स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। PQ square equals to 2R square. Therefore, PQ is equals to square root of 2R square. So R root 2, you'll get the answer. Answer is what? R root 2. बहुतों ने 2R आंसर दिया, किसी ने डायमीटर दिया है। And now I think you understood the solution. I think you understood the solution. Question interesting था और मेजोरिटी ने अजीब आंसर दिया है, क्यों दिया पता नहीं। माही गुप्ता, श्रेया डे, तनिस्तुदीस, अद्विका, you are giving the answer 2R, और ऋचा कश्यप 2 पाई। ऐसा मैजिक कैसे हो गया? Now have you understood the solution? ये नया क्वेश्चन था, that means for you all of you, but I have already discussed this particular question, पहले भी डिस्कस किया था मैंने। So have you understood this one? मजा आया कि नहीं? कुछ रेस्पॉन्स नहीं। ओके, so I'm moving to another question. I'm moving to another question. If you want to take the screenshot, you can take the screenshot. The same question I have already discussed before. I'm moving to another question.
ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस वन, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. A motorcyclist drives from A to B with a uniform speed of 30 km per hour. So यहाँ motion A to B with what speed it is given? 30 km per hour. And returns back with the speed of 20 km per hour. जाने का स्पीड और आने का स्पीड दोनों स्पीड गिवन है. ओके और आपको पूछा गया एवरेज स्पीड क्या है. तो कुछ स्टूडेंट डायरेक्ट क्या करेंगे, 30 + 20 डिवाइडेड बाई 2 तो 25 आएगा, दे विल गिव दिस आंसर. बट मैंने आपको बार बार बोला है एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिस्टेंस कवर्ड नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ले लेते x. तो जाने का डिस्टेंस अगर x होगा तो आने का डिस्टेंस भी x ही होगा. ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस between 2 points, let the distance between 2 points be x. ये मान लेते हैं हम लोग. Let the distance between 2 points be x. So first case और second case में हम लोग टाइम निकाल लेते हैं. v1 is equals to s1 by t1. इससे आप t1 फाइंड आउट कर लेना. सिमिलरली सेकेंड केस से आप v2 is equals to s2 by t2 से t2 फाइंड आउट कर लो. अब आपके पास t1 और t2 अगर है, यू कैन इजीली फाइंड आउट एवरेज स्पीड, क्योंकि एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड s1 + s2 by t1 + t2. s1 + s2 x + x और t1 यहाँ पे s1 by v1, s1 यानी x और v1 मतलब 30 तो x by 30 प्लस x by 20. और इसको आपको सॉल्व करना है. 2x यहाँ पे 30 और 20 का एलसीएम क्या लोगे आप? 30 और 20 का एलसीएम 60. तो एलसीएम 60 लेने के बाद यहां आपको मिलेगा 2x + 3x. अब जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे you will get 120x by 5x. x और x got cancelled. 120 by 5 km per hour and you will get the answer 24 km per hour. You will get the answer 24 km per hour. Have you understood, all of you? I think all of you have understood this particular question. और ये one of the most important question है this chapter. Okay, I am moving to another question. If you want to take the screenshot, you can take. I am moving to another question. Another interesting question, this one. This is important also. The question here, an insect moves along a circular path of radius 10 centimeter with a constant speed. Insect moves
along a circular path. Insect moves along a circular path of radius 10 centimeter. इस circular path का radius आपको बता दिया गया है and radius is 10 centimeter. It takes 1 minute to move from one point on the path to the diametrically opposite point. मतलब यहां से जर्नी स्टार्ट करके डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट तक पहुंचने में इसको लग जाता है 1 मिनट. You have to find out distance covered, speed, displacement and the average velocity. तो रेडियस आपको गिवन है एंड सेमी सर्कुलर पाथ का बात हो रहा है. A to B मोशन इज सेमी सर्कुलर. सो आपको अगर पूछा जाए डिस्टेंस क्या होगा, तो एक सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई r. सो डिस्टेंस कवर्ड विल बी पाई r. फिर आप वैल्यू पुट कर लेना. फिर आपको पूछा जा रहा है स्पीड क्या होगा. यहां सेंटीमीटर में है याद रखना और ये मिनट में है. आपको अगर ऐसा यूनिट में आंसर निकालना है तो रेडियस को आप 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना. ओके. और टाइम को जो मिनट में गिवन है उसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेना. एसआई में आंसर निकालना ठीक होता है अदर देन अगर किलोमीटर पर आवर में एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड. अदरवाइज यू कैन डू दैट 60 सेकेंड्स. तो आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना एंड देन स्पीड निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, डिस्टेंस बाय टाइम. टाइम आपके पास है. थर्ड क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ये सीधा लाइन एंड दैट इज डायमीटर. डिस्प्लेसमेंट will be equals to what diameter and diameter is 2 into r. तो आपके पास आंसर आ जाएगा. एंड नंबर 4 में आपको फाइंड आउट करना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. You will get to the answer. Okay, you will get to the answer. इन जो क्वेश्चन मैंने दिखाया उसमें आप ड्राइंग करने से अच्छा रहेगा. सर्कुलर पाथ ये सब में ड्राइंग करना चाहिए. आप स्केल पेंसिल एग्जाम में ऑलवेज रेडी रखा करो. और सीजीएस यूनिट में निकालने से रॉन्ग नहीं होगा, वहां भी ये रॉन्ग नहीं होगा अद्विका, बट आप ऐसा यूनिट में निकालो तो अच्छा है. ओके. सो कुछ कंफर्टेबल फील किया आप लोगों ने अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल्स को लेके. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को लेके कुछ कंफर्ट तो आया होगा. जिन लोगों को पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा. मोशन चैप्टर का स्टार्टिंग पार्ट. ओके. और अभी मैं जितना स्लो पढ़ा रहा हूँ उतना स्लो मैं नॉर्मली नहीं पढ़ाता हूँ. अभी मुझे करवाना है तुम लोग से प्रैक्टिस कि आप सम करो. जल्दी आंसर देने का चक्कर में प्रॉब्लम भी करते हो आप लोग. सो आई एम मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. अनदर क्वेश्चन. कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं. टेक्स्ट बुक का जो है क्वेश्चन उसको मैं एक बार सिलेक्शन नहीं कर रहा हूँ और टेक्स्ट बुक के बाहर का कोई क्वेश्चन लेते हैं. ये क्वेश्चन आप ट्राई करो ऑल ऑफ यू. You just try this question. I am giving you some time.
आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, वो भी एसआई यूनिट में। तो टोटल डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस गिवन नहीं है क्वेश्चन में, आपको तीनों पार्ट का डिस्टेंस कवर्ड अलग से निकालना होगा, फिर उसको ऐड करना होगा, फिर टोटल टाइम से डिवाइड करना होगा। कीर्ति घोरावत गॉट द आंसर, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है मैं बता रहा हूं। नमन ऑल्सो गॉट द आंसर, नमन अग्रवाल 10.83 मीटर पर सेकेंड, 10.83 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है, 3 पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड करना आपको, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, और उसमें आपको V1 गिवन है और T1 गिवन है, यहाँ पे V2 गिवन है, T2 गिवन है, V3 गिवन है और T3 गिवन है। तो इससे S1 फाइंड आउट कर सकते हो, इससे S2 फाइंड आउट कर सकते हो, इससे S3 फाइंड आउट कर सकते हो, एंड देन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम, total distance covered by total time, you will get the answer. Okay, total distance covered by total time taken. I hope you have understood this particular solution. Technique of solution मैंने बता दिया है, आंसर आपको मिलना चाहिए 10.83। कुछ स्टूडेंट एकदम भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं आंसर देने में, ओके, और कुछ लोग एकदम भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। यू शुड पार्टिसिपेट, योर आंसर इज एक्सेप्टेबल। तो आंसर इज 10.83। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक का 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, दे आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सो डिस्कस करना अच्छा है उनको। एक फार्मर रिलेटेड क्वेश्चन, वो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक मोशन चैप्टर का, और कम से कम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए। इस शीट में है कि नहीं आपको चेक करना है। दिस वन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझाता हूं पहले। फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। तो सबसे पहले एक स्क्वायर फील्ड इमेजिन करते हैं हम लोग, मैं समझा देता हूं, बहुत इजी है, और इसका लेवलिंग कर लेते हैं हम लोग एज A, B, C and D। A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 मीटर, मतलब हर एक साइड 10 मीटर है, और उस स्क्वायर फील्ड का कंप्लीट राउंड लगाने में, एक राउंड लगाने में फार्मर को लगता है 40 सेकेंड। तो क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds। तो 2 minutes 20 seconds में कितना सेकेंड्स होता है? 140 seconds। 40 सेकेंड में 1 राउंड कंप्लीट करता है फार्मर, सो नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड in 40 सेकेंड है 1। Therefore, number of rounds completed in 120 सेकेंड आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 3.5 राउंड्स। तो 3.5 राउंड होता है 2 minutes 20 सेकेंड में, तो 3.5 राउंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा देखना आप। 3.5 राउंड का अगर बात करें हम लोग, तो A से लेकर A तक एक राउंड, फिर दूसरा राउंड, फिर 3 राउंड, एंड देन 3.5 राउंड, मतलब कहां पहुंच जाएगा? C के वहां। आपको समझ में आया? एक राउंड A से स्टार्ट किया, वापस A में पहुंच गए। दूसरा राउंड में A से स्टार्ट करेंगे, वापस A में पहुंच जाएंगे। तीसरा राउंड में A से स्टार्ट किया, वापस A में पहुंच गए, एंड 3.5 राउंड मतलब हम कहां तक पहुंच रहे हैं? C तक, 3.5 राउंड में। सो 3.5 राउंड में हम लोग पहुंच रहे कहां तक? अगर मैं उस स्क्वायर फील्ड को वापस इमेजिन करूं,
तो 3.5 राउंड में हम लोग कहां पहुंच रहे हैं? अगर हम यहां से A, B, C और D 3.5 राउंड में मैं पहुंच जाता हूं A से लेके C तक। ओके, कितना राउंड में? 3.5 राउंड। तो मैंने 3.5 राउंड्स का कैलकुलेशन आपको समझाया था, और 3.5 राउंड में डिस्प्लेसमेंट होगा विल बी AC। डिस्प्लेसमेंट होगा AC, तो आपको AC फाइंड आउट करना है। उसके लिए आप यूज कर सकते हो ट्राइंगल ABC। हियर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो AC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ईच साइड का वैल्यू 10 मीटर क्वेश्चन में गिवन है, तो AB का वैल्यू भी 10 मीटर और BC का वैल्यू भी 10 मीटर। So AC square equals to AB square plus BC square. AC square equals to AB square plus BC square. So AC square equals to 10 meter whole square plus 10 meter whole square. तो AC square आपका आएगा 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर, 200 मीटर स्क्वायर। AC will be equals to root over 200 मीटर स्क्वायर। इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 2 into 100 मीटर स्क्वायर, तो ये आपको 10 रूट 2 मीटर विल बी द आंसर। 10 रूट 2, और रूट 2 का भी वैल्यू आपको अगर पता तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो 1.41। उसको पुट करके यू कैन मल्टीप्लाई विद 10, तो 14.1 आएगा, या फिर आप 10 रूट 2 भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट व्हाट 10 रूट 2। ओके, I hope all of you have understood this one। और ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है मोशन चैप्टर में, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल। Okay, now another question, think about that particular question, एक और question, and that question will be the last question of today's class। You first think about that particular question। This one, ये भी टेक्स्ट बुक का है, लेकिन एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। आप इसके बारे में सोचो 2 मिनट, थिंक अबाउट दैट। Most of you are giving answers, लेकिन आज में अभी जल्दी आंसर देने का नहीं है, जस्ट यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन। जिनका समझा हुआ नहीं है, ये सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन है, and here it is given athlete completes 1 round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds। एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकेंड्स, एक राउंड जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंचने में, और इसका डायमीटर दे दिया 200 मीटर, इससे रेडियस का पता चल गया 100। 2 मिनट्स 20 सेकेंड का बात है इधर भी, 40 सेकेंड में 1 राउंड, और 2 मिनट 20 सेकेंड्स, 2 मिनट 20 सेकेंड्स यानी 140 सेकेंड,
और 140 सेकेंड्स में कितना राउंड होगा वो कैलकुलेशन करना है हम लोग को। 40 सेकेंड में 1 राउंड, तो 80 सेकेंड में 2 राउंड, 120 सेकेंड में 3 राउंड, 140 सेकेंड थोड़ा देर पहले हम लोगों ने कैलकुलेशन किया था ऐसा ही 3.5 राउंड्स, 3.5 राउंड्स। तो जर्नी अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो 3.5 राउंड, एक राउंड में जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंच गए, दूसरा राउंड में जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंच गए, तीसरा राउंड में जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंच गए, एंड 3.5 राउंड में ऑपोजिट साइड में पहुंच गया डायमीटर का बी। सो आफ्टर 3.5 राउंड डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड एक राउंड में डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड होगा 2 पाई आर। Therefore distance covered in 3.5 राउंड्स क्या होगा? 3.5 into 2 pi r. You will get the answer. Okay? और दूसरा आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट होता है shortest distance between the initial and final position, and that is equals to diameter. This is equals to what? Diameter. Displacement is the shortest distance between the initial and final position. Diameter directly आपको given, it is 200 meter. Okay. So I hope you understood this particular question also. अब क्या है, आपको इतना कॉन्सेप्ट देने के बाद आप इस पैटर्न का कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। आपको सिर्फ फोकस करना है, और मैक्सिमम पैटर्न वी हैव डिस्कस्ड रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सो एन एवरेज स्पीड आल्सो। तो नेक्स्ट जब भी एक्स्ट्रा क्लास होगा उसमें अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड। इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैसे अप्लाई किया जाता है इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। सो फॉर टुडे आई होप सफिशिएंट। You just mark your attendance. Distance होगा 2200 मीटर इसमें। Okay.